Hello students, class 7. Today we will understand exterior angle property of a triangle. Fine. Last time we understood exterior angle of a triangle. Today we will understand exterior angle property. And this topic, this exterior angle of a triangle and its properties is on page number 116 of NCERT book. Fine. So at first we will understand what is exterior angle property. Suppose we have any triangle like this. A, B, C, and this is exterior angle. Fine. This is exterior angle. This is angle A, this is angle B, this is angle C. So, according to exterior angle property of a triangle, an exterior angle, this, suppose this is 1, 2, 3, 4. So this angle 4 is equal to angle 1 plus angle 2. Means, according to this property, an exterior angle is equal to the sum of its interior opposite angles. Fine. We will not include this angle 3. Fine. आप एक बार अच्छे से समझो, ये जो एक्सटीरियर एंगल है वो इसके ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स के सम के इक्वल होता है. यही होता है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी. फाइन. सो व्हाट वी विल राइट, एट फर्स्ट वी विल राइट हियर दिस प्रॉपर्टी. एन एक्सटीरियर एंगल of a triangle is equal to the sum of its interior opposite angles. Interior opposite angles. Fine. So suppose we have any triangle P Q R. This point is S, angle P, angle Q, angle R, and this is an exterior angle. So according to this figure, so according to this figure, exterior angle, angle PRS, angle PRS is equal to angle P. So what we can write for angle P? We can also write angle P as angle QPR or angle RPQ. So I am writing here angle QPR. ठीक है. ऑलवेज रिमेंबर, जब हम ऐसे लिखते हैं तो बीच वाला जो होता है वो हमारा एंगल होता है. फाइन. एंड प्लस एंगल Q. तो एंगल Q को हम कैसे लिख सकते हैं? एंगल PQR. एंगल PQR. फाइन. So this is our exterior angle property of a triangle. Fine. So note down in your notebook this thing at first. Now we will prove this thing, that really this exterior angle is equal to the sum of its interior opposite angles. Fine. हम लोग अब प्रूफ करेंगे जो हम लोगों ने अभी देखा एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, कि बाहर वाला जो एंगल होता है वो अंदर वाले दो ऑपोजिट एंगल्स के सम के इक्वल होता है. हम लोग इस चीज़ को प्रूव करेंगे. फाइन. सो आई टुक हियर ए ट्रायंगल ABC with an exterior angle. This. Fine. Given क्या क्या है हमारे पास? a triangle ABC with an exterior angle, angle ACB. Fine. And we have to prove that measure of angle C
मीन्स दिस एंगल C इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल A प्लस मेजर ऑफ एंगल B, मीन्स ये जो एंगल C है इज इक्वल टू एंगल A प्लस एंगल B. फाइन. सो एट फर्स्ट वी विल डू कंस्ट्रक्शन. So what we will do construction, see carefully. We will draw through C a line segment which will be parallel to this line segment AB. Fine. So I am drawing here. ये जो लाइन सेगमेंट में ड्रॉ कर रही हूँ, ये लाइन सेगमेंट जो है वो इस लाइन सेगमेंट AB के पैरेलल होना चाहिए, और पैरेलल आपको पता है क्या होता है, उसके जैसा सेम. सो आई एम गिविंग दिस पॉइंट एज E. फाइन. तो आप लोग उसको, मैंने डॉट डॉट दिखाया है, आप लोग उसको पूरा स्केल से भी ड्रॉ कर सकते हो, नो इशू. एंड आपकी बुक में ऑलरेडी ये जो है वो दे भी रखा है, बट आई एम शोइंग हियर हाउ यू विल प्रूव दिस थिंग. फाइन. ठीक है. तो देखो ये कंस्ट्रक्ट कर दिया हम लोगों ने. क्या कंस्ट्रक्ट किया हम लोगों ने, देखो थ्रू C draw a line segment CE which is parallel to line segment AB. फाइन. ये हम लोगों ने क्या किया है, कंस्ट्रक्ट किया है. नाउ वी विल प्रूव दिस थिंग दैट रियली बाहर वाला एंगल जो होता है वो अंदर वाले एंगल के मतलब कि अंदर वाले एंगल्स के सम के इक्वल होता है. सो प्रूफ इन राइट हियर, प्रूफ. सो देखो AB is parallel to CE. If line segment AB is parallel to line segment CE and this AC is transversal. मैंने आप लोगों को ट्रांसवर्सल बताया था लास्ट चैप्टर में. ठीक है. अगर दो लाइंस पैरेलल है उसके ऊपर से एक ट्रांसवर्सल जा रही है, सपोज ये दो लाइंस पैरेलल है एक दूसरे के, लाइन बोल दो, लाइन सेगमेंट बोल दो, और वैसे ये लाइन सेगमेंट्स है क्योंकि इसके दोनों तरफ एरो नहीं है. फाइन. तो ये दोनों जो लाइन सेगमेंट है वो पैरेलल है एक दूसरे के. फाइन. तो इस पे से ये AC जो है उसको हमने ट्रांसवर्सल मान लिया. ठीक है. और ट्रांसवर्सल ही होगा ये बिकॉज दीज टू लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर. सो एंड लाइन सेगमेंट AC इज transversal. Then देखो ये वाला एंगल, अच्छा इसको हम दे देते हैं x, इस हाफ को, इधर को y. वैसे कंप्लीट तो ये C एंगल है, लेकिन ये जो लाइन सेगमेंट है इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही है. फाइन. तो इसको हमने दे दिया x, इसको दे दिया y, एंड कंप्लीट दिस इज 1 2 3, दिस इज फोर्थ एंगल. फाइन. इसको हमने एंगल 4 दे दिया. अब देखो क्या होगा अगर ये दो लाइन सेगमेंट्स पैरेलल है एक दूसरे के और ये AC कोई ट्रांसवर्सल लाइन है इनके ऊपर, तो ये वाला एंगल, दिस एंगल एंड दिस एंगल विल बी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. फाइन. सो दिस एंगल्स जो होंगे आपस में इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि हमें पता है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर. सो यू राइट हियर एंगल 1 is equal to x. Fine. Why? Because alternate interior angles. Fine. अच्छा. Now, if AB is parallel to CE and this BD is any transversal, हो सकता है ना, ऐसे भी हो सकता है ट्रांसवर्सल और ऐसे भी हो सकता है ट्रांसवर्सल, दो पैरेलल लाइंस पे, है ना. तो BD इज ट्रांसवर्सल. सेकेंड टाइम में क्या कंडीशन दी, इफ लाइन सेगमेंट AB is parallel to line segment CE and line segment BD is a
देन क्या हो जाएगा, दिस एंगल and this angle will be corresponding angles, and we know corresponding angles are equal to each other. So we can write here angle 2 is equal to y. क्यों? क्योंकि corresponding angles है. Fine. So note down in your notebook till now. ठीक है, उसके बाद फिर हम आगे का भी इसको प्रूव करेंगे. आगे हम कैसे करेंगे इसको? सो एट फर्स्ट नोट डाउन इन योर नोटबुक टिल हियर. नाउ सी हाउ वी विल डू दिस. आई एम इरेजिंग दिस पार्ट नाउ. पहले आपको यहाँ तक लिखना है, उसके बाद जो मैं इरेज करके लिखूंगी वो लिखना है. फाइन, यहाँ तक हो गया. Now see, now अब देखो, हम लोगों को पता चल गया एंगल 1 इज इक्वल टू एक्स एंड एंगल 2 इज इक्वल टू वाई. एंड ये जो कंप्लीट एंगल है, कंप्लीट एंगल सी, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? एक्स प्लस वाई. फाइन, सो वी विल राइट हियर नाउ एंगल सी को हम क्या लिख सकते हैं? एंगल सी को एंगल ACD भी लिख सकते हैं और एंगल सी भी लिख सकते हैं और एंगल 4 भी लिख सकते हैं. फाइन, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ एंगल ACD, कोई प्रॉब्लम नहीं है. एंगल ACD इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई. ये कंप्लीट एंगल है, एक्स प्लस वाई लिख दिया. अच्छा, एज वी नो, जैसा कि हम लोगों को पता है, हम लोगों ने यहाँ पे लिखा था x is equal to angle 1. So we can write here angle ACD is equal to x. x के बराबर क्या था? एंगल 1 प्लस एंड y के इक्वल क्या लिखा था हमने? एंगल 2. फाइन, एंड एंगल 1 क्या है? एंगल A एंड एंगल 2 क्या है? एंगल B. फाइन, सो वी कैन राइट इट एज एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल 1 को मैं क्या लिख सकती हूँ? एंगल A भी लिख सकती हूँ और एंगल BAC भी लिख सकती हूँ. तो एंगल BAC प्लस एंगल 2 को मैं क्या लिख सकती हूँ? एंगल B भी लिख सकती हूँ और एंगल ABC भी लिख सकती हूँ. सो एंगल ABC. ठीक है, और करके लिख सकते हो आप. और क्या लिख सकते हो? एंगल, अगर हम इसको लिखना चाहें तो मेजरमेंट ऑफ एंगल C इज इक्वल टू एंगल 1 क्या हो सकता है? मेजरमेंट ऑफ एंगल A प्लस एंगल 2 मेजरमेंट ऑफ एंगल B. नाउ सी, क्या ये चीज आ रही है हमारी? आ गई ना? देखो, सो नाउ इट इज प्रूव्ड दैट रियली exterior angle of a triangle is equal to the sum of its interior opposite angle. Fine, so hence proved. Fine, so note down in your notebook, and it is on page number 117 in your NCERT book. Fine, so ये भी आपको लिखना है और जो मैंने आपको पहले करके बताया था लिखना है, वो भी आपको लिखना है. Fine, so note down in your notebook, and if you didn't understand anything, then you can ask me again.